concentration part. Now, okay, we'll start all this definition and this thing. First of all, listen here. What is solution? What is colloids? And what is suspension? ये भी मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था, और देखो थोड़ा डिस्टर्बेंस था करके लेक्चर हम लोग जल्दी खत्म किए थे. If we are going to put sand in water, what will happen after some time? After some time, there is a settlement. So we are going to get liquid as well as solid particles. That is heterogeneous. That is heterogeneous. That is heterogeneous system. Okay. Next one is colloids. Listen here. What is colloid? This part you people have done in 11th standard, colloids करके adsorption and colloids करके topic था. So if you put soap in water, if you put soap in water, so that water will become milky. That water will become milky, and that is the best example of what colloids. और एक एग्जाम्पल आपको मैं colloids का देता हूँ, milk. That milk is also colloids. Now, अभी अपना टॉपिक है solution. Means what? Actually, true solution. So, hello. Now, if you put salt in water, what will happen? That salt will get dissolved. Okay, and though we have added solid particles in all these three things, okay, but the thing is what, in this true solution, as there is a complete dissolution, and that's why we cannot get two different phases, and that's why it is called homogeneous mixture. Okay, homogeneous mixture. So first of all, tell me what is homogeneous mixture. It is homogeneous means what? Same proportion नहीं. Homogeneous is what? Homo is what? Same. Same. What is that? Tell me phase. Same phase. And mixture means what? It is what? Tell me proportion. Yes, you are telling definition of mixture. Proportion is not fixed. So what is the definition of true solution? Listen here. Homogeneous mixture of two or more components. What is the meaning of this thing? Suppose मेरे घर पे मेरे मिसेस ने नींबू शरबत बनाया, तो वो क्या करेंगे, पहले नींबू का ये कॉन्सेंट्रेट डालेंगे, बाद में थोड़ा सा नमक डालेंगे, बाद में थोड़ा सा व्हाट इज दैट शक्कर डालेंगे. तो व्हाट इज दिस वन? टेल मी. इट इज व्हाट? मिक्सचर ऑफ व्हाट? लेमन कॉन्सेंट्रेट, शुगर एंड सॉल्ट. ओके, so it is like this. Suppose मेरे को ज्यादा मीठा मांगता है, तो I'll put extra sugar. So that's why proportion is not fixed. Understood the definition? So this is what, मैं एक बार वापस पढ़ता हूँ. Homogeneous mixture of two or more components, the composition of which is not fixed and may be varied with certain limits. May be varied with certain limits. Now, what is the meaning of this one? May be varied with certain limit. There is a limit. It is not like this ना कि मैं इतना सा पानी लूँ, थोड़ा सा पानी लूँ, और उसमें सपोज मैं 1 लीटर पानी लूँ एंड उसमें मैं 10 किलो शक्कर डालूँ, डिसॉल्व होगा क्या? नहीं होगा, है ना? दैट्स व्हाई इट शुड बी इन प्रोपोर्शन. ओके, नाउ पहला सर वाटर को बॉईल करेंगे तो फिर तो डिसॉल्व हो जाएगा ना? नहीं, 1 लीटर पानी में 10 किलो शक्कर कैसे होगा बच्चा? नहीं होगा ना. वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अभी हम लोग आगे देखेंगे. 1 लीटर पानी में 1 लीटर पानी कितना है ना? तो 1 लीटर पानी में 10 किलो शक्कर कितने से डिसॉल्व होगा? नहीं होगा, है ना? ज्यादा पानी लगेगा. दैट मीन्स देखना अभी इधर आगे आएगा बेटा. सो व्हाट इज सॉल्वेंट? Tell me what is solvent. Suppose if I am taking water and I am putting sugar, so tell me what is solvent? But obvious solvent क्या रहेगा? Water, sir, water. Water ना. So we can say solvent is water. अभी हम लोग define कैसे करेंगे? जरूरत नहीं वो पढ़ने का. Solvent is the substance which dissolves solid and which is present in major proportion is called solvent. क्या बोला? बोलो. Solvent is the substance
which dissolves solute and it is present in what I mean major proportion is called solvent. So what could be the definition of solute बच्चा? Solute is a sugar है ना, solute is the substance, अभी देखा आपको क्लियर हो जाएगा. Solute is the substance which get dissolved in solvent and which is in the minor proportion, that is called solute. Understood? Next one is सर हाँ? सर सॉल्वेंट मतलब सॉल्वेंट सॉल्वेंट मीन्स सपोज वाटर है तो वाटर जो है उसमें वाटर का रोल क्या है बेटा? सॉल्वेंट है ना. अंडरस्टूड? नहीं समझा? वापस बोलो एक बार. लिसन, एकदम सिंपल है बेटा. अगर मेरे को मीठा पानी पीना है तो व्हाट यू विल डू? You will provide me water and sugar. You don't know मेरे को कितना शुगर मिलता है. It is like this. एक चम्मच पानी लोगे, एक चम्मच पानी लोगे और उसमें इतना सारा शुगर ऐड करोगे, चलेगा क्या? नहीं 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 ना, है कि नहीं? तो सॉल्वेंट का प्रोपोर्शन हमेशा कैसे मांगता है बच्चा? ज्यादा मांगता है ना. ओके, और पानी क्या करेगा? शुगर को डिसॉल्व करके लेगा. तो टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन? सॉल्वेंट इज द सब्सटेंस which dissolves solute and should be in major proportion. बेटा और एक let me tell you one thing. कुछ भी नहीं समझा तो प्लीज बिना झिझक पूछ लेना. हाँ, ओके. Now tell me what would be the definition of solute? क्या बताया? Solute is the substance, बोल बेटा, which get dissolved in what? Tell me solvent and what is that? It should be in बोलो बच्चा minor Smaller proportion. Minor proportion है ना. Now listen here. बाइनरी, अभी सॉल्यूशन का टाइप क्या क्या रहेगा? बाइनरी, टर्नरी और क्वाटर्नरी. बाइनरी मींस इसमें सॉल्यूशन के लिए सॉल्वेंट मांगता है और क्या मांगता है? लिसन हियर, सोल्यूट मांगता है कि नहीं? तो सपोज मैं आपके क्लास में कभी तो आऊंगा अभी, है कि नहीं? तो मैं सपोज पानी लेके जा रहा हूं तो आप बोलोगे सर ये क्या है? तो मैं बोलूंगा ये सॉल्यूशन है ना. अभी देखो, हाँ, सॉल्यूशन में सोल्यूट का इंपॉर्टेंस कैसे रहता है मैं थोड़ा आउट ऑफ वे जाके बताता हूँ कैसे. तो मैं बोलूंगा ये सॉल्यूशन है तो आप बोलोगे ये सॉल्यूशन है तो उसमें सोल्यूट क्या डाला है? हाँ, तो मैं बोलूंगा इसमें मैंने थोड़ा सा पॉइजन डाला है. तो आप बोलोगे अरे वेरी गुड सर, तो आप पी लो, है ना. मैं दूसरे दिन आ गया पानी लेके, उसमें मैंने शक्कर डाला है. आप वापस बोलोगे सर ये क्या है? मैं बोलूंगा सॉल्यूशन. इट इज अ सॉल्यूशन. सो व्हाट यू हैव एडेड इन दिस? आई टेल नाउ टुडे आई एडेड दिस वन शुगर. तो आप बोलोगे सर ये हमको पीने को दे. अंडरस्टूड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सोल्यूट, है ना. दैट मीन्स सॉल्यूशन के लिए सोल्यूट का मालूम होना, टू नो सोल्यूट is what very important. Now listen here. What is binary solution? A solution consisting of, or binary word से पता चल रहा है, binary is what? It is what? Made up of two components. One is solvent and one is what? Solute. What is ternary? एक solvent रहेगा और दो क्या रहेंगे? Solute रहेंगे. What is quaternary? One solvent and three solute रहेंगे. Understood? What is binary? बोलो बच्चा. What is binary? One solvent, one solute. What is ternary? One solvent, two solute. What is quaternary? One solvent, three solute. Okay. Now, next one. बेटा भी ध्यान देना. So here, first of all, types of the solution. But you know one thing. There are three phases of
this one is what solid, one is what liquid, and one is what gas. Okay, so basically there are only 3 types, and that 3 types will give you 9 types. 3 types will give you 9 types. देखो देखो, हाँ, first of all solute, मैंने लिखा है solid, 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 this is one phase. Next one liquid, 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 another phase gas, gas, gas. That means 3 plus 3 is 6 plus 3 9. That means how many types of solutions are there? 9 types of solutions are there. अभी देखते हैं. Solid, solute and liquid solid. इसको मैं कैसे पढ़ूंगा ये आपको मैं बताता हूँ. एरो कर्सर देखना, सॉलिड इन लिक्विड. देखो ये सॉल्वेंट है ना, अच्छे से ध्यान देना बेटा. सॉलिड इन लिक्विड. टेल मी व्हाट इज द एग्जांपल. sugar in water, salt in water. What is next one? Solid in solid. What is the example? Metal alloys. Metal alloys. Now tell me what is brass ka composition? Anyone? Copper and Copper. Yes, copper and hello? Aluminium. नहीं नहीं, ब्रास में लिसन बता दो. हाँ, मुझे जान चाहिए, ऐसे आपको मैं चेक नहीं कर रहा था. दिस इज फॉर योर इंफॉर्मेशन. ब्रास में सर कॉपर एंड जिंक. दैट्स इट. ब्रास में कॉपर एंड जिंक. एंड ब्रॉन्ज में जेड आ रहा है ना, वहां पे टिन. समझा? ब्रास इज व्हाट, जहां पे एस आ रहा है वहां पे जेड लिख देना, और ब्रॉन्ज में BRONZE वहां पे जेड आ रहा है वहां पे SN लिख देना. मीन्स व्हाट? कॉपर एंड टिन. कॉपर एंड टिन. ओके, नेक्स्ट वन. सॉलिड इन गैस. सॉलिड इन गैस. चलो बोलो कौन सा एग्जांपल. सब्लिमेशन ना, है कि नहीं. आयोडीन. आयोडीन क्या है? सब्लिमेबल है. व्हाट इज सब्लिमेशन? From solid to gas direct. Direct. Solid to gas direct. Okay. Now, just tell me, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ. ओके, ये जो कन्वर्जन है सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, ओके, या गैस टू लिक्विड, या लिक्विड टू सॉलिड, ओके, दिस phase transition takes place at, tell me, phase transition takes place at, fill in the blank. चलो बोलो क्या रहेगा. पर्टिकुलर टेम्परेचर. That's it. Particular नहीं बोलना चलेगा. Constant temperature. What does that mean? Constant टेम्परेचर. थैंक यू सर. है ना. ना आगे देखो बच्चा. लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड. आप अभी देखो ये यहाँ पे मैंने लिखा है सॉलिड इन गैस, आयोडीन इन एयर. आप कैम्फर भी बोल सकते हो, है ना, कैम्फर. ओके. नाउ लिक्विड इन लिक्विड, अल्कोहल इन वाटर, अल्कोहल इन वाटर. अभी जस्ट आपको 12th में ही अल्कोहल चैप्टर है. दिस you as you are in 12th standard तो थोड़ा तो मालूम रहेगा. बियर है, विस्की है, it is like this. So in beer percentage of alcohol is less. In whiskey percentage of alcohol is what? More. Okay. होता क्या है? Okay. थोड़ा सा एक थोड़ा सा मजाक में इसमें बता रहा हूँ, सीरियसली मत लेना. तो आपके घर वाले बोलेंगे कौन से सर आगे सर हमारे बच्चों लोग को खराब कर. आप सब ने बचपन में, अभी आप घर पे ही हो तो मम्मी को पूछ लेना, आप सब ने घर बचपन में ग्राइप वाटर पिया रहेगा. यू मस्ट हैव ग्राइप वाटर. तो ग्राइप वाटर पीने से बच्चा हेल्दी बनता है, ऐसा बोलते हैं. व्हाट डज इट मीन? लिसन, अल्कोहल. क्या सर? ग्राइप वाटर, GRIP, ग्राइप वाटर आप सब ने पिया रहे. 100%. मतलब it is like yes sir, पिया है.
हाँ है ना, मतलब क्या होता है? बताता हूँ. इट इज लाइक अ मेडिसिन ओनली. हाँ, स्वीट वाटर रहता है. ओके, इट कंटेन्स सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल. वो बच्चे को पिलाते हैं. अभी ये उम्र में आप पियो तो आपको कुछ नहीं होगा, वो बच्चे को पिलाते हैं. सो इफ यू आर गोइंग टू हैव अल्कोहल, वो छोटा सा बच्चे जब वो ग्राइप वाटर पीता है, नथिंग बट सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल पीता है, तो होता क्या है, बिकॉज ऑफ दैट अल्कोहल उसका डाइजेशन प्रॉपर होता है और उसको हंग्री फील करता है, भूख ज्यादा लगता है. एट द सेम टाइम अल्कोहल इज गोइंग टू अफेक्ट ऑन नर्वस सिस्टम, है ना. दैट्स व्हाई वो खाता है और सोता है. छोटा बच्चा है तो खाएगा और सोएगा, तो मस्त से क्या हो जाएगा, चुस्त हो जाएगा. ओके, दिस इज द फंडा बिहाइंड व्हाट टेल मी ग्राइप वाटर. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, लिक्विड इन सॉलिड. लिक्विड इन सॉलिड, देखो, लिक्विड इन सॉलिड, द बेस्ट एग्जांपल इज अमालगम ऑफ मर्क्यूरी विथ मेटल. देखो, आपने 11 पास किया तो आपको मालूम है, व्हाइल परफॉर्मिंग रिडक्शन रिएक्शन, ओके, हम लोग क्या लिखते हैं, इट इज व्हाट, जिंक अमालगम. Okay, so what is zinc amalgam? So amalgam basically, याद रखो बेटा, amalgam is mixture with mercury. So zinc amalgam means mercury in silver. उसका जो particles रहेगा मेटल का, वो फाइन पार्टिकल्स मांगता है. ओके, why फाइन पार्टिकल्स मांगता है? When size decreases, more and more surface area is available for reaction and rate of reaction will increase. Okay, now एक बार हम लोग वापस देखते हैं. सॉलिड इन लिक्विड, एग्जांपल कुछ भी दे सकते हो. सॉलिड इन सॉलिड, मेटल अलॉयज. सॉलिड इन गैस इज व्हाट, सब्लिमेबल सब्सटेंस. लिक्विड इन लिक्विड बताने का जरूरत नहीं है. लिक्विड इन सॉलिड, ये याद रखने का, अमालगम्स ऑफ मर्क्यूरी विथ मेटल. लिक्विड इन गैस मींस क्लोरोफॉर्म. व्हाट इज क्लोरोफॉर्म? जिससे CHCl3. बेहोश हो जाते हैं. हाँ बराबर, अनकॉन्शियस. गुड, वेरी गुड, है ना. CHCl3 इन नाइट्रोजन. CHCl3 इन नाइट्रोजन. बेटा अभी ध्यान दो, 11th और 12th के बच्चे ने क्लोरोफॉर्म और मिथाइल क्लोराइड में ना कंफ्यूज हो जाते हैं. व्हाट इज मिथाइल क्लोराइड? एनीवन? व्हाट इज द फॉर्मूला? CH3Cl. CH3Cl. वेरी गुड. एंड व्हाट इज क्लोरोफॉर्म? CHCl3. दोनों हैलोजन डेरिवेटिव ही है, बट एक CH3Cl you told, it contains only one chlorine, so it is monohalogen. और यहाँ पे देखो CHCl3 है, it is trihalogen. Okay, now gas in liquid, जो हम लोग थम्स अप वगैरह जब बेवरेजेस पीते हैं, उसमें if you open suddenly, if you are going to shake bottle vigorously and if you are going to open the lid, पूरा वो जो बेवरेज रहेगा, कोई जो भी ड्रिंक रहेगा, वो बाहर आ जाता है, बिकॉज CO2 is dissolved in water under pressure. CO2 dissolved in water under pressure. This part, separate part is there in your this same chapter under Henry's law. Okay, now gas in solid, hydrogen gas adsorbed in what, tell me, palladium or platinum. Okay, now what is last one? Gas in gas, you can say air, है ना. Tell me, in air what is the proportion of oxygen? Anyone? 70. नहीं, हाँ, नहीं, 70, 20. Sir, 21. 78% नाइट्रोजन रहता है और 20% क्या रहता है बच्चा? ऑक्सीजन रहता है. ये मेजर प्रपोर्शन. ओके, आगे समझा ये पार्ट. टेल मी, basically how many types are there? 3, और 3 से कितना बना? 9. सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन सॉलिड. क्या करने का?
यहाँ पे सॉलिड 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 करने का, यहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस करने का, लिक्विड 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 करने का, सॉलिड लिक्विड गैस करने का, गैस 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 करने का, सॉलिड लिक्विड गैस करने का। डन। ओके, नेक्स्ट आगे देखो। नाउ कैपेसिटी ऑफ solution to dissolve solute, capacity of solution to dissolve solute। लिसन हियर, थोड़ा सा आपको मैं कंसेप्ट बताता हूँ क्या है। सपोज एक आदमी है, अच्छे से सुनना बेटा, एक वन मैन इज देयर, he can have 6 रोटी, 6 चपाती खाने के बाद, 6 रोटी खाने के बाद उसका पेट भर जाता है। ओके, कभी कभी ऐसे होता है, मीन्स अपने घर पे कभी कभी मम्मी क्या करती है, एकदम मस्त बढ़िया सा कोई डिश बनाती है, मीन्स वो सब कुछ अच्छा रहता है। ओके, सो हम लोग बोलते हैं आज मैंने गले तक खाना, अभी बिल्कुल जगह नहीं। तो लिसन, so the thing is what, that man has capacity to have 6 roti, means there is no space to have that extra roti. So beta listen here, so suppose after knowing his capacity, suppose if you are going to provide only 2 rotis, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो? वो आदमी का पेट 6 रोटी खाने से पूरा भरता है, बट हमने उसको सिर्फ 2 ही रोटी खिलाई पूरा दिन में, तो बोलो क्या बोलेंगे आप लोग? सिंपल, साइंस बाजू में छोड़ो, टेल मी, सिंपल सिंपल सिंपल। वो आदमी का पेट 6 रोटी खाने से पूरा भर जाता है और उसको हमने आज सिर्फ 2 ही रोटी खिलाई, तो क्या बोलो? पेट नहीं भरा, पेट नहीं भरा, दैट्स इट, है ना, है कि नहीं? दैट मीन्स उसका पेट नहीं भरा। लिसन हियर, नाउ यू नो हिज कैपेसिटी इज व्हाट, हैविंग 6 रोटी, है ना। सो वो आदमी अपने पास आया, अपने को मालूम है इसने, he already had 6 rotis, so if we are going to provide one more roti, वो बोलेगा नहीं नहीं, हमने उसके मुंह में ठूस दिया, एक खाना ही पड़ेगा और एक खा ले, तो क्या होगा? the thing is what, उसको अभी वोमिट हो जाएगा, क्योंकि उसके पेट में जगह ही नहीं है। ओके, तो देखो मैंने आपको 3 चीज बताया। The person has capacity to digest, to have 6 rotis. If we are going to provide only 2 rotis, वो बच्चे ने बताया उसका पेट भरा नहीं है। मैंने बताया थर्ड केस में, if we are going to provide extra rotis, तो वो वोमिट कर देगा। Means what? After knowing, yes, that man can have 6 rotis, and if we are providing 6 rotis, so उसका पेट भर गया। पेट भर गया means what? Saturated. Okay, after knowing his capacity, he is providing only 2 rotis. वो बच्चे ने बोला पेट भरा नहीं है। What is that? Unsaturated. What is that? Unsaturated. Next one, after knowing उसका कैपेसिटी, ओके, स्टिल वी आर प्रोवाइडिंग खाना, तो वो वोमिट कर देगा, दैट इज व्हाट? सुपर सैचुरेटेड। अभी सॉल्यूशन है, तो व्हाट इज सॉल्यूशन? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट dissolved in given amount of solvent at given temperature। मैं वापस बताता हूँ, solution which contains maximum amount of solute means what? 6 रोटी का ये है, maximum amount of solute dissolved in a given amount of solvent at a given temperature।
इसमें दो गिवन है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट? दूसरा बंदा रहेगा, उसका पेट ज्यादा बड़ा रहेगा, तो वो 6 से ज्यादा भी खा सकता है. दैट मीन्स सॉल्वेंट का अमाउंट कीपिंग सेम, वी हैव टू कंपेयर. गिवन टेम्परेचर, वो जैसे मैंने बताया कि 1 लीटर में 10 किलो शक्कर नहीं हो, तो बच्चे ने बताया ना हीट कर दो, तो देखो ना टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये है. दैट्स व्हाई इट इज रिटन हियर गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एंड गिवन टेम्परेचर. ओके, व्हाट इज नेक्स्ट वन? अनसैचुरेटेड देखते हैं. व्हाट इज अनसैचुरेटेड? बोलो, पेट भरा है कि नहीं भरा है? नहीं भरा. नहीं भरा है ना. वेरी गुड. अ सॉल्यूशन containing, देखो यहाँ पे क्या आ गया, less than equilibrium amount of solute is called unsaturated solution. आप बोलोगे सर डेफिनेशन तो समझा, ओके. मैं अगर ऐसे लिखूं solution which contain less amount than solution required to become saturated, चलेगा क्या सर? ये इक्विलिब्रियम वर्ड आया तो थोड़ा दिल में कुछ तो हो गया. देखो, आपको 11 में केमिकल इक्विलिब्रियम था, उसके न्यूमेरिकल्स करते करते बच्चे परेशान हो जाते हैं. ओके, व्हाट इज इक्विलिब्रियम मैं बताता हूं. आजकल सिस्टम क्या है, ओके, ऐसा आपके सबके घर में ऐसा नहीं रहेगा. आजकल क्या होता है, जो ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, नॉट इन ऑल फैमिली, लेट मी टेल यू क्लियरली, जो ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं उनको किसी दूसरे घर में रखा जाता है और न्यूक्लियर फैमिली रहता है, मींस व्हाट, हस्बैंड वाइफ एंड किड्स. तो पहले जमाने में ऐसे नहीं होता था, जॉइंट फैमिली रहता था. जॉइंट फैमिली रहता था मींस व्हाट, ग्रैंड पेरेंट्स, मम्मी डैडी एंड किड्स. सो दैट ग्रैंड पेरेंट्स कैन deliver their ideas, their fundamentals, okay, all basic needs to kids. तो इसमें क्या होता था, बच्चे भी वो बड़ों का रिस्पेक्ट करते थे, ओके, एंड देयर इज व्हाट मी बॉन्डिंग बिटवीन यंगर वन एंड एल्डर वन. ये हो गया इक्विलिब्रियम, ये हो गया इक्विलिब्रियम. तो अभी यहाँ पे इक्विलिब्रियम वर्ड क्यों आ गया? तो जब भी मैक्सिमम अमाउंट रहेगा, सपोज 1 लीटर में एक 20 ग्राम शुगर डिसॉल्व होती है, ऐसा हम लोग मान के चलते, ज्यादा होगी, हम लोग 20 ग्राम शुगर डिसॉल्व जैसा मान के चलते मैक्सिमम. उसके ऊपर इफ यू आर गोइंग टू पुट एक्स्ट्रा 1 ग्राम, व्हाट विल हैपन? टेल मी. एक मिनट, मैं शुगर की जगह पे NaCl लेता. टेल मी, इफ आई एम गोइंग टू पुट NaCl in 1 liter water, मैंने बोला 20 ग्राम मैक्सिमम NaCl डिसॉल्व होता है, ओके. सो आफ्टर, आप मेरे साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और हम लोग को समझा कि 20 ग्राम के ऊपर तो नहीं हो रहा. सो टेल मी, व्हाट विल हैपन विद दैट 21th ग्राम? मैं डालूंगा वो 21th ग्राम, मींस व्हाट, आफ्टर पुटिंग 20 ग्राम, व्हेनेवर डिसॉल्व नहीं होगा. हाँ, बट क्या होगा उसका? परफेक्ट आंसर, डिसॉल्व नहीं होगा, मींस उसका डिसोसिएशन नहीं होगा, वो NaCl बन के नीचे बैठेगा. एम आई राइट? मींस व्हाट, देयर इज an equilibrium between dissolved state and undissolved state, and that's why this word is there, equilibrium. समझा बच्चा? So what is unsaturated solution? Solution containing less than equilibrium amount of solute is called unsaturated solution. जैसे मैं पढ़ रहा हूं ना, वैसे आप डेफिनेशन पढ़ो, हो जाएगा. देखो, a solution containing less than equilibrium amount, ये साथ में पढ़ना, less than equilibrium amount of solute is called unsaturated. Tell me, what would be the definition of supersaturated? Supersaturated समझा कि नहीं समझा? हेलो, Yes sir. supersaturated is what, पेट भरने के बाद भी खाना खिलाया ना. Tell me what that solution containing overloading, greater than the equilibrium amount of solute. Understood है कि नहीं? Now उसको ही क्या बोलते हैं? Tell me.
सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन. क्या बोलते हैं? Precipitation. प्रेसिपिटेशन. ओके. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट? सोल्यूबिलिटी. नाउ लिसन. सोल्यूबिलिटी देखो. हाँ, अभी आप कॉलेज के लिए सुबह शायद निकलते हो, आपके डैडी भी शायद सुबह ही काम पे जाते हैं. सर सपोज सुपर सैचुरेटेड प्रेसिपिटेशन है क्या? हाँ, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज नथिंग बट प्रेसिपिटेशन, है कि नहीं? नाउ सपोज आपका भी मम्मी से झगड़ा हो गया और डैडी का भी झगड़ा हो गया, तो इट इज नॉट लाइक दिस कि मम्मी से झगड़ा हो गया तो मम्मी आपको टिफिन नहीं देगी, दोनों को टिफिन देगी, बट ऑब्वियस उसका ड्यूटी है वो. ओके. नाउ ऐसा हम लोग मान के चलते कि उसका ड्यूटी है, नहीं, उसका वो इंटरेस्ट रहता है, उसका वो अफेक्शन रहता है टुवर्ड्स यू पीपल, करके वो देती है. ड्यूटी रहेगा तो नहीं देगी. नाउ द थिंग इज व्हाट, वो बोलेंगे दोनों ने झगड़ा किया है क्या, वेरी गुड, ओके, वो आपको मस्त से रोटी सब्जी बना के दे दे. आप जब भी कॉलेज में या खाना चाहोगे तो आप बोलोगे अरे इसमें तो नमक ही नहीं है या बहुत कम नमक है. ओके. ओके. डैडी आप घर पे आओ, अरे मम्मी क्या सब लोग के सामने मेरा प्रॉब्लम हो गया, तूने नमक ही डाला. लिसन, means what? May that given amount of that sabji, proportion of that salt was less. Am I right? It is nothing but amount of salt which has dissolved in that sabji was less. So solubility is nothing but amount of solute present per unit volume, present per unit volume of saturated solution. Okay, so amount of solute, nothing but what I said, उसमें नमक का proportion, nothing but concentration कम था. And you know how to measure concentration, आपको मैंने पहले लेक्चर में बताया था. मोलैरिटी. What is molarity का unit? Moles per liter. Moles per liter. Okay. Now, so solubility याद रखने का बेटा प्लीज, हाँ, जंबल नहीं करने का. Solubility is nothing but concentration. And what is the unit of concentration? Moles per liter. Okay. Now, so what is the definition? Amount of solute present per unit volume of saturated solution at a specific temperature. Okay. सर हाँ, बोलो. सैचुरेटेड सॉल्यूशन में तो ऑलरेडी थोड़ा सा सोल्यूट रहेगा ना? नहीं रहेगा ना, कैसे रहेगा? सुपर सैचुरेट बच्चा, सुपर सैचुरेट में रहेगा ना. देख मैं वापस बताता हूँ. हमने क्या किया, मैंने क्या बोला, what we found after taking 1 liter water, है ना, मैं 20 ग्राम डालता हूँ तो 20 ग्राम पूरा डिसॉल्व होता है ना बच्चा. तो if water which contain 20 gram salt is what saturated ना बच्चा, and when you are going to put that to extra 1 gram, वो नीचे जाके बैठेगा ना, that is super saturated. समझा? इसके लिए मैंने ये बताया नहीं, मैंने आपको रोटी का एग्जांपल बताया. समझा? सैचुरेटेड क्या है? मीन्स 1 लीटर वाटर में आपको समझ में आया कि 20 ग्राम से ऊपर सॉल्ट डिसॉल्व नहीं होगा. सो 20 is the figure. If 20 gram present in 1 liter, it is saturated. If it contains more than that, it is super saturated. If it is less than that, it is unsaturated. And what is the definition of solubility? Amount of solute present per unit volume of saturated solution at a specific solubility of solute is, देखो यहाँ पे लिखा है, देखो बच्चा, solubility of solute is its maximum concentration. अभी मैं थोड़ा सा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेके जाता हूँ. टेल मी व्हाट इज द रूल फॉर सोल्यूबिलिटी. आपको देखो 11 में आने के बाद पहला वो जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं उसमें पढ़ाते हैं ना, अल्केन इज इनसोल्यूबल इन वाटर, जनरली organics are insoluble in water. And what is the rule for solubility? Anyone?
solvent should be more than solute. हाँ वो तो है रूल। मैं क्या बोला, मैं आपको अभी किधर लेके गया बेटा, ऑर्गेनिक। चलो बोलो, व्हाट इज द रूल फॉर सोल्युबिलिटी? सुनो, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, व्हाट आई सेड, लाइक LIKE, Polar dissolves polar. Yes, very good. Polar compound dissolves in polar solvent and non-polar compound dissolves in non-polar solvent. Very good, है ना? Good. आप बच्चे अच्छे हो, अच्छा आंसर देते हो. Good, very good. Okay. Now, fact affecting solubility. Factors affecting solubility. Now, listen. First of all, suppose आपका एक क्लास है, आप 30-40 बच्चे साथ में बैठे हो और कोई टीचर आता है, तो होता क्या है, आप वो टीचर का फीडबैक देते हो, हाँ वो टीचर ने अच्छा पढ़ाया सर, ओके, बट वो टीचर ना हमको गाली देता था, तो सर कोई तो दूसरा देखो न चलेगा, है कि नहीं? मीन्स जो टीचर आपके लेवल में घुल जाता है, व्हाट इज घुल जाना? सोल्युबिलिटी। एम आई राइट? सो आप बोलोगे हाँ ये हमारे लेवल पे आते हैं, हम लोग में मिक्स होते हैं, यस ये चलेंगे, है ना? सो फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, इट मीन्स पोलर, को बच्चे ने भी बताया, वेरी गुड, पोलर कंपाउंड डिसॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट। नाउ व्हाट आर पोलर कंपाउंड्स? जहां पे पॉजिटिव निगेटिव चार्ज रहता है, इन जनरली आयोनिक कंपाउंड्स, है ना? नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयोनिक कंपाउंड? जस्ट टेल मी, 1 मिनट। आयोनिक कंपाउंड, अच्छे से आंसर देना, Which produces plus or negative anions or cations when dissolves. एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड। हाँ, अभी और एक क्वेश्चन सुनना, अच्छे से सुनना। आयोनिक कंपाउंड, या डायरेक्ट मैं एग्जांपल बताता हूँ। इफ आई एम हैविंग 2 बीकर, अच्छे से सुनना बेटा, आई एम हैविंग 2 बीकर, in one beaker I am putting NaCl, which is ionic compound, and in another beaker I am putting HCl, hydrogen chloride. Okay, now just tell me, the beaker in which I have dissolved NaCl, what is that process called? Don't say solubility. अभी वो बच्चे ने क्या बताया? Gives you cations and anion. किधर से आ गए वो? NaCl से, है ना? Means what? NaCl में that NaCl itself contain Na plus and Cl minus, है ना? This process is called dissolution. What it called? Dissolution means dissociation. क्या बोलते हैं उसको? Dissociation. बताता हूँ क्या है बेटा। And अभी इसका जवाब आपको देना ही है। The beaker in which I have introduced that HCl, घुल जाएगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसको क्या बोलो? वो क्या देगा? ये जो बच्चे ने बताया ना कैटायंस एनायन, अभी आई एम पुटिंग HCl इन दैट, तो वो क्या देगा? अरे जो बच्चे ने बताया ना कैटायंस और एनायंस देगा, वो बोलो। सर मॉलिक्यूल्स देगा ना? विराम। H प्लस और Cl माइनस देगा ना। HCl जो है, हाँ हाँ, H प्लस और Cl माइनस देगा। वहां पे भी क्या मिल रहा है? Na प्लस और Cl माइनस। तो उसको Na प्लस और Cl, ये छोटी छोटी बातें रहती है ना, ये हम लोग को ऐसा नहीं, आपको मालूम नहीं रहेगा, ओके? वहां पे भी Na प्लस और Cl माइनस मिला है, और यहाँ पे भी H प्लस और Cl माइनस मिल रहा है। सो इसको बोलेंगे डिसोसिएशन। तो इसको क्या बोलेंगे? आप बोलोगे सर डिसोसिएशन नहीं,
इसको बोलेंगे आयोनाइजेशन. क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन. What is ionization? Formation of ion. And what is dissociation? Separation of ions. ये याद रखने का बेटा. तो फॉर एग्जाम्पल सिंपल करके बताता हूँ. डिवोर्स किसका होता है? डिवोर्स हस्बैंड वाइफ का होता है ना, मीन शादी होने के बाद होता है. कोई किसी का अफेयर चलता है तो हम लोग कॉलेज में ऐसा बोलते कि अरे उन लोग का डिवोर्स हो गया, ऐसे बोलते कि नहीं, बिकॉज affair is temporary relationship, okay, and shadi is what permanent relationship. So dissociation के लिए that compound should have ions. Na plus और Cl minus है, वो पानी में separate हो गए. Separation is what? Dissociation. और HCl में H plus और Cl minus नहीं थे, वो बच्चे ने बोला ना मॉलिक्यूल, वो HCl ही था. वो डिसॉल्व होने के बाद H प्लस और Cl माइनस डेवलप हो गए, पैदा हो गए, जनरेट हो गए. दैट्स व्हाट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन. समझा बेटा? नाउ व्हाट इज नेक्स्ट थिंग? लिसन. आगे non-polar compound dissolves in non-polar solvent. Non-polar solvent. Okay. Now आगे ये हो गया. What is next part? Temperature. Now tell me, आपको मालूम है, suppose if you are going to increase the temperature, so what will happen? Tell me. More and more solute will get dissolved. More and more solute will get dissolved. Okay. Next one. भी आगे. Reason behind solubility of polar compound is solute-solute, solvent-solvent, and solute-solvent interaction. Okay. Now just tell me. Suppose solute को solvent में dissolve होना है, तो क्या करना पड़ेगा? आयंस में ब्रेक होना पड़ेगा शायद. ये शायद क्यों बोलते हैं, बराबर तो है. सुनो, सपोज जनरल ट्रेंड क्या रहता है? शादी होने के बाद लड़की लड़के के घर पे आती है. यस और नो? द थिंग इज व्हाट, जब भी वो लड़की लड़के के घर पे आती है, सो बेसिकली forget about parents and all this thing. Basically, there must be strong bond. There must be strong bond between that boy and girl. Means what? Solute and solvent. थोड़ा सा एग्जाम्पल ये होगा, बट कंपेयर करो. फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट सोल्यूट सॉल्वेंट बॉन्ड शुड बी स्ट्रॉन्ग. ओके. कभी कभी हम लोग देखते हैं कि कोई ऐसा नहीं, आउट ऑफ 100 एक या दो शादी मैरिज लाइफ सक्सेस नहीं होता है. व्हाई? क्योंकि वो लड़की लड़के के घर पे आ रही है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सपोज एक लड़की लड़के के घर पे आ गई शादी होने के बाद, बट वो जो लड़का है उसका मम्मी से, डैडी से, उसके घर में जो भी ब्रदर सिस्टर है, उन लोग से स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है. तो वो क्या करते हैं, कोई भी बात करनी रहती है तो लड़की को, जो नई मेहमान आई है, उसको बाजू में रख देते और वही आपस में बात करते रहते हैं. तो जस्ट टेल मी, दैट न्यू गर्ल कैन assimilate with them? No. That means if solvent bond is greater, या फिर उल्टा ले लो, वो जो लड़की आई है उसका उसके मम्मी से इतना अफेक्शन है कि एक दिन में, 2 दिन में, बार बार वो घर पे, मीन्स व्हाट, मायके में ही जाती है. मीन्स व्हाट? सोल्यूट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर. अभी होगा क्या? अगेन आई एम टेलिंग, फॉर टू हैव अ सक्सेसफुल मैरिज लाइफ, दैट लड़की का एंड लड़के का बॉन्ड शुड बी स्ट्रॉन्ग. उसमें प्यार होना मांगता है, अफेक्शन होना मांगता है. मीन्स व्हाट? दिस लड़की के साइड का बॉन्ड एंड लड़के का साइड का बॉन्ड शुड बी लेस, and then this solution will form. In short, if solute solvent interaction
is equal to solute and solvent means in short ये इंटरेक्शन क्या मांगता है, ये दोनों से क्या मांगता है, ज्यादा मांगता है, then solute will get dissolved. Now देखो dissolution of sugar. Now tell me what is sugar का formula? Anyone? Sir, what's the 2206. आराम से सी बोलो. C6 C6H22O11. 2211. C6 नहीं ना बेटा, C12H22O11 है ना. इसको क्या बोलते हैं, केन शुगर. क्या बोलते हैं, केन शुगर, जो हम लोग गन्ना खाते हैं या अपना घर पे जो रहता है वो. ओके, तो व्हाट इज C6H12O6? तो वो भी शुगर है. व्हाट इज दैट? ग्लूकोज. व्हाट दैट? ग्लूकोज. Glucose. तो ये क्या है, C12 क्या है? शक्कर. अरे हाँ, तो व्हाट इज द नेम? शक्कर लिखोगे. सुक्रोज. क्या है? सुक्रोज. Sucrose. Now C6H12O6 is blood sugar. Is blood sugar. समझा बेटा? याद रख. Now this part, next part देखो बेटा. Okay, 10 मिनट है, हो जाएगा शायद. टेम्परेचर. जनरल ट्रेंड क्या है बेटा? हाँ बोलो. सर बोलो बोलो. सर हेलो. शुगर क्यों नहीं लिख सकते? शुगर the thing is what, if you write on क्या sugar, तकलीफ क्या है? नहीं तकलीफ कुछ नहीं रहा है, इतना तकलीफ मत लेते. शुगर नहीं लिख सकते. If you want to write on chemical name, तो you have to write on sucrose ना बेटा. What I ask you, साइंटिफिक नेम है वो. if listen here, एक बता बच्चे को डाउट तुम लोग क्लियर कर. What I ask you, what is the formula? So what you told, C12H22O11 ना. तो both are sugars. आपको एक अलग से शुगर करके चैप्टर है, कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, उसके लिए डिफाइन हो जाएगा. बट यू कैन नॉट राइट ऑन शुगर. तो इफ यू राइट ऑन शुगर ना, तो सामने क्वेश्चन मार्क डालेगा, C6H12 वाला है या C12H22. समझा ना बेटा? दिस नाउ. सो जनरल ट्रेंड क्या है बेटा? थोड़ा सा आपको ये पहले बताता हूँ. जनरल ट्रेंड इज व्हाट? व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, solubility increases. Solubility increases. Okay. So one rule is there. If you increase temperature by 10 degree, solubility become doubles. Means double solute dissolve हो जाएगा. This is general trend. Okay. उसके पहले और एक एग्जांपल बताता हूँ. Exothermic process. What is exothermic process? Heat is given out. Exit. Heat And is liberated. yes, heat is given out. What is endothermic process? Heat 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 is absorption. absorbed. Heat is absorbed. Very good. है ना बेटा? अभी आप 12th के जो भी एग्जाम दोगे, जेई दोगे, नीट दोगे, कोई भी कुछ भी एग्जाम या सीईटी दोगे, तो बेटा एक चीज याद रखना, ये डायलॉग याद रखने का. एक्सोथर्मिक प्रोसेस फेवर्स एट लो टेम्परेचर. व्हाट आई सेड. दूसरा डायलॉग याद नहीं रखने का. टेल मी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस फेवर्स एट लो टेम्परेचर. टेल मी व्हाट इज द, क्या बोला मैंने? चलो बोलो एक बार, रिपीट करो आप लोग. Exothermic. Exothermic process फेवर्स favors एट low temperature. Low temperature. लो टेम्परेचर, है ना. नाउ अभी क्या होगा देखो. When you put solute in solvent, so there are two chances. Either that dissolution may be exothermic or may be endothermic. Maybe exothermic या may be endothermic. Now just अभी आगे आंसर लिखा है मैंने, बट थोड़ा सोच के बोलो. If suppose that dissolution is what exothermic, so what would happen? It will take place at what I said अभी just now. एक ही डायलॉग Low याद रखनेगा. temperature. एक्सोथर्मिक प्रोसेस मांगते हैं तो आपके पास नोट रहेगा ना, तो उधर लिख देना कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस फेवर एट लो टेम्परेचर. सो अगर दैट डिसोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक, देखो एक बेटा यहाँ पे, देन एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन
favors at low temperature and endothermic dissolutions favor at high temperature. ये सब ऐसे सिंपल लॉजिकल क्वेश्चंस वहां पे जेई में दिखते हैं. अरे यार मैंने सोल्यूबिलिटी पढ़ा, ये पढ़ा, पर वो मेरे को टीचर ने तो ये सब बताया नहीं था, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक. थोड़ी आप मेरे घर पे आने वाले हो, सर ये आपने पढ़ाया नहीं. इसमें बच्चे का प्रॉब्लम होता है. So do one thing, one more thing, let me tell you. Now they have cut some part from CBSE. They have cut some part from CBSE in chemistry, physics, biology and maths. Okay. तो अभी एक चीज बताता हूँ. Those student who are sincerely serious. It is not like this कि मैं बाकी किसी को डिमोरलाइज कर रहा हूँ, क्योंकि कोई भी जितना भी हम लोग देखते हैं कि बहुत कम बच्चे आखिर तक पढ़ते. तो बेटा अभी टाइम जो है इसमें डू वन थिंग, आप लोग वो एनसीईआरटी का बुक जो है वो ना एक बार आप स्टोरी जैसे पढ़ लेना. इन फिजिक्स, इन केमिस्ट्री and in maths या फिर आपका in biology. Listen here, there are two things I'm talking regarding entrance. There are two things. One is what numerical part and one is what theoretical part. So it is not been decided कि 50% theory आएगा, 50% numericals आएगा. So theoretical part is like your fill in the blanks. Means अगर आप देखते रहोगे इंटरव्यूज वगैरह, तो जो टॉपर रहते हैं वो, मीन्स एक लड़की का इंटरव्यू मैंने देखा था, वो लड़की बोलती थी कि बायोलॉजी में मैं क्या करती थी, मैं वो स्टेटमेंट पढ़ती थी, वो पैरा पढ़ती थी. आफ्टर रीडिंग दैट पैरा जस्ट मैं खुद को ही क्वेश्चन पूछती थी कि इसके ऊपर एमसीक्यू कैसे बनेगा. इट इज लाइक दिस. सपोज मैंने पढ़ा एंडोथर्मिक डिसोल्यूशंस फेवर एट हाई टेम्परेचर, तो ये ना ये प्रैक्टिस रखो बेटा. सो आप एमसीक्यू क्या बनाओगे, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन फेवर एट विच टेम्परेचर, हाई, लो, मॉडरेट, ऐसे. तो आपको सब मालूम है एंडोथर्मिक प्रोसेस होता क्या है मालूम है, जब भी आप खुद योर ओन when you are going to construct the question within a fraction of second आप बोलते हो अरे सर एंडोथर्मिक प्रोसेस है हाई टेम्परेचर, वो ना अपना ब्रेन है ना वो इंसिडेंट के साथ क्या करता है, याद रखता है. लेट मी टेल यू वन थिंग, अपना ब्रेन हमेशा ना पिक्चर मेमोरी याद रखता है. पिक्चर मेमोरी. आई विल गिव यू वन एग्जांपल. सपोज इफ आई आस्क यू, देखो आप सिंसियरली जवाब दे. इफ आई आस्क यू, अभी आप 12th के बच्चे हो, मीन्स 12th में गए हो, मीन्स जस्ट 11th पास किए. इफ आई आस्क यू इन 7th स्टैंडर्ड आप कौन से बेंच पे बैठते थे? थर्ड बेंच. वेरी गुड. बाकी के लास्ट बच्चे, बेंच. अरे वेरी गुड, मैं भी लास्ट बेंच. बस. एक मिनट. जब भी मैंने ये क्वेश्चन पूछा, देखो ना वो बच्चे ने विद इन सेकेंड बताया कि थर्ड बेंच, लास्ट बेंच, सेकेंड लास्ट बेंच, फर्स्ट बेंच. वो बच्चे ने बताया. आपने बाजू वाले को पूछा क्या, या मम्मी को पूछा क्या, अरे भाई मैं स्कूल में जाता था क्या, मैं कौन से बेंच पे बैठता था? नहीं, मैंने तो 7th स्टैंडर्ड मीन्स 5 साल पहले वाला क्वेश्चन पूछा है. अभी मैं बताता हूँ व्हाट इज पिक्चर मेमोरी. When I ask you this question about 7th standard, आपने तो बेंच बता दिया, but within for a fraction of second आपके सामने आपका क्लासरूम आया, आपकी टीचर आई, आपके फ्रेंड्स आए, आप क्या यूनिफॉर्म पहनते थे ये भी आया. यस और नो? Yes, really. है ना? So this is what picture memory, this is the God gift which is given to human being by God, and that's why हमेशा you pray to God, जो भी अपना भगवान है. ओके, दिस. तो बेटा हम लोग इसका क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे. और एक चीज बताता हूँ,
ये नोट मैंने शेयर किया, नॉट ओनली फॉर केमिस्ट्री, फॉर फिजिक्स. लिसन हियर, एट फॉर दिस मोमेंट यू पीपल आर इन स्टूडेंट फेज. आप स्टूडेंट फेज में हो तो स्टूडेंट बच्चों को तो पढ़ना ही है, तो ये फेज भी खत्म हो जाए. आप जब भी एक भी लाइन पढ़ते हो, पिक्चर की पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, वो आपको हमेशा कुछ ना कुछ तो नॉलेज दे. द थिंग इज व्हाट, जो भी होगा ना, कोई भी पढ़ाने दो, कोई भी क्लास में पढ़ाने दो, कॉलेज में पढ़ाने दो, एक काम करने का, वो सेम पार्ट फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, इवन मैथ्स का, वो सेम पार्ट आप सेम डे में कंप्लीट करने का. उसके लिए रात को 11 बजने दे, 12 बजने दो, ओके, वो पार्ट कंप्लीट करके रखने का. बस जस्ट यू रीड. होता क्या है, आई टेल यू, आफ्टर सपोज 1 month या आफ्टर सपोज for 1 month, if you are going to read, after suppose 1 month, if you are going to read, you are going to create that concept by your own. बट सेम डे में जब भी पढ़ोगे तो आप वो टीचर का दिमाग से पढ़ोगे. अरे हाँ, आज सर ने बताया था व्हाट इज दैट सोल्युबिलिटी, सुपर सैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. तो सर ने एक एग्जांपल दिया था, अरे हाँ, मेरे को कंसेप्ट क्लियर हो गया. इट इज लाइक दिस. ओके, नाउ देखो बेटा, टेम्परेचर. सो एक मिनट, बेटा अभी पढ़ना मत, जस्ट टेल मी एक्सोथर्मिक प्रोसेस फेवर्स एट. बोलो बेटा. Low temperature. That's it. Low. That's it. बेटा देखो, लो टेम्परेचर, ये जो आपका आंसर का जो ये है ना, वो भी अरे सर लो टेम्परेचर, ये ऐसे आपका रिस्पॉन्स मिलता है. वेरी गुड. ओके, नाउ आगे देखो क्या लिखा है. देखो, बट देयर इज नो डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन सोल्युबिलिटी एंड एक्सोथर्मिसिटी एंड एंडोथर्मिसिटी. ओके, यहाँ पे बेटा मैं अभी क्या करता हूँ, रुकता हूँ. इट इज अबाउट 8 o'clock. ये जो एग्जाम्पल्स है थोड़ा फास्ट हो जाएगा तो आपको नहीं समझेंगे. ओके, सो टेल मी, क्या फिनिश किया आज बेटा, क्या फिनिश किया? फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्युबिलिटी पार्ट कंप्लीट किया, व्हाट द टाइप्स मेथड सॉल्यूशन कंप्लीट किया, बाद में फैक्टर्स अफेक्टिंग कंप्लीट किया. यस और नो? एक बार ये थोड़ा सिर्फ व्हाट आई सेड जस्ट आपको गो थ्रू करना है, बाय हार्ट नहीं करना है. By hearting is temporary phase. Understood? So we'll stop here. Bye bye and good night. Okay? Good night, sir. समझा नहीं है? हाँ सर. Okay? कुछ डाउट रहेगा? Yes sir, thank you. कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लेना. Okay? Okay sir. Sir, please send the